Good morning, students. Welcome back to English class. So let us continue our chapter, The Diary of Anne Frank. So she says her father is. She says her father is the most lovable father one could get. Her father married her mother when he was at the age of 36 and she was 25. She and her sister Margot were both born in Frankfurt. As soon as Annie turned 4, her father returned to Holland, followed by her mother in September, while both the sisters stayed with their grandmother in Athens. Margot was also sent to Holland in December, followed by Annie in Feb, who was brought as a birthday present for Margot. So here is the family history is given about Annie's family, that where they are at that time. He is very too much attached with her father, okay, in comparison to her mother, and they both were married at the age of 36, and when her mother was at 25, and she has one sister Margot, and both born in Frankfurt, okay. And जब Annie 4 years की हुई, as Annie turned to 4 years, her father returned to Holland, followed by her mother in September. September में वो लोग हॉलैंड शिफ्ट हो गए फ्रैंकफर्ट से, okay. That's and while both the sisters stayed with the grandmother, लेकिन ये दोनों sisters जो थी मार्गोट एंड एनी, ये अपनी grandmother के पास ही रुकती हैं. And मार्गोट जो है दिसंबर में she also followed her by Annie, and in Feb Annie go to Holland, okay. So one by one, after a few months, they all were go to Holland. They all were shifted to Holland with her father, okay. So Annie was sent to Montessori Nursery School in Holland. एनी को हॉलैंड में नर्सरी स्कूल में भेजा गया था. मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से उन्होंने अपना एजुकेशन शुरू किया. एंड शी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट क्लास. शी हैड मिसेस क्यूप्यूरियस एंड द हेड मिस्ट्रेस. और वहाँ उनको जो टीचर मिली क्यूप्यूरियस, जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूप्यूरियस, वो उनकी बहुत ही अच्छी टीचर, उनकी बहुत ही फेवरेट टीचर थी. एंड एज अ टीचर इन सिक्स्थ फॉर्म हु इवन क्राइड एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, जो कि फेयरवेल के वक्त जब सिक्स स्टैंडर्ड में आई और उनका स्कूलिंग वहाँ का पूरा हुआ, तो वो बहुत, उनकी आंखों में आंसू थे. दे हैव टीयर्स इन देयर आईज. एंड फेयरवेल इन 1941. एंड द ऑथर्स बर्थडे could not be celebrated well because her grandmother fell ill. और यहाँ ऑथर जो है एन फ्रैंक, उनका बर्थडे जब आया, सिक्स बर्थडे, तो उनका बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया यूज लेवल पे, क्योंकि उनकी ग्रैंडमदर इज नॉट फीलिंग वेल एंड अंडरवेंट एन ऑपरेशन, और सब उनको ऑपरेशन की भी सख्त ज़रूरत थी. एंड अनफॉर्चुनेटली हर ग्रैंडमदर लेफ्ट टाइम इन जनवरी 1942, ओके. 42 में फिर से जब उस वक्त आफ्टर 1 ईयर उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती है. एंड एनी मिसेज अ ग्रैंडमदर मोर देन एनीवन, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी. एंड दिस ईयर्स बर्थडे वॉज टू बी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट ज़ील सो एज टू कंपनसेट फॉर लास्ट ईयर्स. और उसके बाद जो उनका बर्थडे आया उसको सेलिब्रेट किया गया लास्ट ईयर के बर्थडे को भी कंपनसेट करते हुए. सो she then says that her family is doing well, which sums up her background and brings her to the present date of time, 29 1942, June 29 1942, when she is writing her diary. तब यहाँ से 20 जून 1942 में उन्होंने अपना डायरी लिखना स्टार्ट किया, डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ओके, जिसको उन्होंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना था और उसको एक नाम भी दिया था, किटी. शी इज राइटिंग हर डायरी ऑन जून 20 1942. Annie began writing in her diary, addressing it her friend Kitty, and she mentions how her entire class is nervous about their results, and it is unpredictable and will be decided by a meeting of teachers in which they will select students to be moved to next class or kept back. Many students were making bets. Some had put in their entire summer savings at stake. तो एट दैट टाइम जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, उन्होंने ये चीज़ भी, उन्होंने रिजल्ट भी अपना शेयर किया था उस डायरी के साथ. उस डायरी में जो वो यहाँ बता रही हैं कि रिजल्ट डे था और बच्चों ने यहाँ तक कि बैट भी लगाई थी रिजल्ट को लेकर कि कौन किसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके. और यहाँ तक कि अपनी जो भी समर सेविंग्स भी थी वो भी उन्होंने एट टैक्स मीन्स एट बैट्स मीन्स एट कंडीशन शर्ट उस पर उस मनी को भी उस पर शर्ट में लगा दिया था.
So let us see. She and her friend G also made fun of nervous boys. They kept on saying to each other that I am not going to pass, while others would console them and say yes you would. वो बच्चे इसी तरह से आपस में they were conversed with each other that they will pass or they will not pass. Okay, so G was polite and she tried to stop them from making noise while Annie scolded them. But none of it worked. According to Annie, about a quarter of class should not be allowed to pass because they hardly respond to take part in any of the activities. Annie को लगता था कि quarter of the class means half से भी कम. Okay, class जो है 1/3 class is going to pass because the students were not taking part in any other co-curricular activities. So she refers to them as dummies. But this may not be the case because teachers' decisions can't be predicted. अब डमीज हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ भी डिसीजंस को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. प्रेडिक्ट करना मीन्स पहले से एज्यूम करना, उसको सोचना. ओके, सो टीचर्स की डिसीजन को लेकर पहले से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं कि क्या होगा, किसको प्रमोशन मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा. लेट अस सी. The author is not bothered about her friends because she is sure that they will pass. Author means Annie. Annie को अपने फ्रेंड को लेकर बिल्कुल भी बॉदर नहीं थी, परेशान नहीं थी. उसे पता था कि वो ज़रूर पास होंगे. एंड द ओनली सब्जेक्ट शी इज अनश्योर अबाउट इज मैथमेटिक्स. एनी को जो हार्ड लगता था सबसे ज़्यादा वो था मैथ्स, मैथमेटिक्स. एंड शी seems to be having a tough time with our subject. But all they could do was wait for the result and not lose their hope. Okay. अब चाहे जो भी हुआ, जैसा भी हो, फाइनली रिजल्ट इज देयर एंड दे डोंट हैव टू लूज देयर होप. एंड शी टेल्स हाउ शी हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल हर टीचर्स एक्सेप्ट द मैथ्स प्रोफेसर. मैथ्स टीचर के अलावा उनके सब टीचर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे. एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड बाय द ऑथर्स टॉकेटिवनेस. क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम थी मैथ्स टीचर को एनी से, क्योंकि एनी थोड़ी उस वक्त उनकी क्लास में टॉकेटिव होती थी. एंड डेस्पाइट सेवरल वार्निंग्स एनी डिडंट स्टॉप टॉकिंग इन हिज क्लासेस. और कई बार टीचर के वार्न करने के बाद भी एनी उनकी क्लास में चुप नहीं रहती थी. एंड विच प्रॉम्प्टेड हिम टू गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट. और कई बार उन्हें ये एज अ पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया जाता था बाय मैथ्स टीचर. सो शी शेयर ऑल हर एक्सपीरियंसेस in that diary with Kitty. Okay, this is a experience she shared about her school life. The first one was to write an essay on chatterbox. अब यहाँ पे पनिशमेंट क्या दिया मैथ्स टीचर ने, उन्हें कहा गया कि आप चैटरबॉक्स, क्योंकि वो बहुत टॉकेटिव थी यानी, तो उनको चैटरबॉक्स टॉपिक दिया गया और उस पर ऐसे लिखने को बोला उनके मैथ्स टीचर ने. एंड विच शी थॉट वाज अ weird topic to write. बहुत ही अजीब सा strange topic to write. And for the moment she wrote the topic in her notebook, kept it in her bag and focused on staying quiet. The author came across and she made a reminder for the essay after she had finished the rest of her homework. She began thinking about the topic. अब वो उसने टॉपिक तो नोट डाउन कर लिया, नोटबुक अंदर रख ली. नाउ सब आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द क्लास एंड रेस्ट ऑफ द होमवर्क, शी बिगेन थिंकिंग अबाउट दैट टॉपिक कि वो क्या लिखे उस टॉपिक पर चैटर बॉक्स को लेकर. While chewing the tip of my fountain pen is a gesture that signifies a person in deep thinking. जैसे पेन को कई बार हम सोचते वक्त मुंह के पास रख लेते हैं. ओके, तो इस तरह से उसने भी gesture मीन्स पोजीशन उसने ऐसा बना रखा था अपना. एंड जैसे कि वो बहुत सोच रही है डीपली उस टॉपिक को लेकर चैटर बॉक्स पे वो क्या लिखे. While anyone could mention random stuff and she wanted to present concrete arguments in support of talking. So she was thinking and thinking about that topic of chatterbox, and she mentioned that she will try to better herself as a student. But talking is something that can't be eliminated completely. Okay, she mentioned that she will try to better herself as a student. As a student वो अपने आप को improve कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से completely अपने आप को, but talking is something that can't be eliminated. बात करना एक ऐसी चीज़ है जिसको कि पूरी तरह से ख़त्म करना इम्पॉसिबल है. बात तो होगी और बच्चों में होगी और क्लास में होगी. सो शी ट्राई टू इम्प्रूव एज अ स्टूडेंट बट शी कांट एलिमिनेटेड दैट completely the talking manner. Okay, and this is because she got it as an inherited trait. Trait means quality.
ये उसकी इनहेरिटेड मीन्स जो उसमें आगे से जनरेशन टू जनरेशन जो हमको इनहेरिट होती है अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने ब्रदर सिस्टर के थ्रू, तो ये क्वालिटी होती है जो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय बर्थ बाय बॉर्न उसमें ये है, बातें करना उसका शौक है। एंड कहाँ से मिली उसे ये क्वालिटी? अपनी मदर से, फ्रॉम हर मदर। एंड दिस इज हाउ शी एंडेड अप राइटिंग 3 पेजेस ऑन द टॉपिक। और इस तरह से एनी ने अपना स्कूल लाइफ को लेकर 3 पेजेस ऑलरेडी उन्होंने लिख चुकी थी वो उस टॉपिक पर, एंड सॉरी ये चैटर बॉक्स पर। एंड द प्रोफेसर फाउंड एनीज आर्ग्यूमेंट टू बी amusing, but when she didn't stop talking in the next lesson also, he gave her yet another assignment as punishment. 3 पेजेस उन्होंने चैटर बॉक्स पे लिख दिए थे कि ये उनकी इनहेरिट क्वालिटी है, वो इसे चाहते हुए भी खत्म नहीं कर सकती हैं पूरी तरह से, बट वो अपने आप को एज ए स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकती हैं। एंड द प्रोफेसर को ये टॉपिक जो था गिवन बाय द प्रोफेसर, मैथ्स प्रोफेसर, and he had completed, but still she can't stop talking in the class. And okay, so again maths professor gave her punishment that he gave her this topic because he is annoyed of her unstoppable chattering during his lessons. और इस बार उन्हें फिर से एक टॉपिक दिया गया, और जो क्योंकि वो अभी भी उनकी बातें खत्म नहीं थी। एंड ऑन रिसीविंग दिस असाइनमेंट द प्रोफेसर डिडंट से एनीथिंग टू हर फॉर अ वाइल, बट ही लॉस्ट हिज पेशेंस। लेकिन इस बार यानी जो है प्रोफेसर, उनके टीचर, वो कुछ भी नहीं बोले और उनका पेशेंस जो है वो लॉस्ट हो गया था। मीन्स ही बिकम वेरी एंग्री एंड ही हैंडेड हर येट अनदर असाइनमेंट एज पनिशमेंट ऑन द टॉपिक क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ओके, इस बार उन्हें ये नया टॉपिक दिया गया फिर से लिखने के लिए कि क्वैक क्वैक कर कर। ओके, सो व्हेन द प्रोफेसर स्कॉल्डेड हर फॉर द थर्ड टाइम एंड पनिश्ड हर, थर्ड टाइम फिर से उन्हें स्कॉल्ड किया गया। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। ओके, स्कॉल्डेड हर एंड पनिश्ड हर एंड द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग। और उसका काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी उस दिन एनी एंड क्लास में। एंड she will become the center of attraction in the whole class, and all the students were started laughing on Annie, and as a result she had to pretend to be amused too. Amused means in a confused manner. She pretend means to copy. ऐसा लग रहा था कि Annie बहुत confused, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि what she will do now. Okay, so let us see. He gave her this topic because he was annoyed of her unstoppable. This we have done. Just wait. After writing twice on similar topics, 2 बार already क्योंकि वो इसी टॉपिक पर लिख चुकी है, chatterbox, and then second topic is quack quack. So she ran out of thoughts. Thus her friend Sunny, who was good at poetry, offered to help her write in rhyme. अब इस बार क्वैक 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 जो टॉपिक है उस पर उनके फ्रेंड जो हैं उन्होंने हेल्प की इन अ पोइट्री फॉर्म। वो उसका उस टॉपिक पर वो लिखती हैं। एंड दिस होल असाइनमेंट scenario was to make Annie feel ashamed, but she made sure that she gave an effective reply. Okay, Annie को यहाँ पे थोड़ा shame भी feel हो रहा है, but वो उसका एक effective reply भी देना चाहती है। And she finally wrote her third assignment in the form of poem, which turned out to be great. She wrote a satire that a father swine bit his 3 baby ducklings to death because of their noisy nature. To her good luck, the professor took it lightly. अब उस पोएम में उन्होंने क्या लिखा कि एक फादर हैं और उनकी फादर स्वैन ओके सी पॉन्ड में जो द बर्ड वाज फ्लोटिंग इन द पॉन्ड स्वैन। ओके, उसके जो 3 बेबी डकलिंग्स हैं वो क्योंकि बहुत नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइजी हैं, तो उनको वहीं पर पॉन्ड में वो स्वैन जो है छोड़कर आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को क्योंकि वो शोर कर रहे हैं तो उन्हें वहीं पर बीच रास्ते में छोड़कर आ जाए कोई पेरेंट्स। सो इस तरह से इन दिस वे शी रोट अ पोएम एंड टू हर गुड लक एंड द प्रोफेसर टुक इट लाइटली। प्रोफेसर ने उनकी इस पोएम को वो नहीं समझ पाए और उन्होंने बहुत ही उसको लाइटली लिया। ओके, तो इस तरह से ये सारा अपना स्कूल लाइफ जो है वो शेयर कर रही हैं अपनी डायरी के साथ, किटी के साथ। द प्रोफेसर recited the entire poem in front of the class. Recited means read that entire means whole poem the क्लास के सामने उन्होंने पढ़कर सुनाया सबको। एंड while giving his own remarks simultaneously, just wait, the author began, fortunate enough talked uninterruptedly after this incident without any further homework as a punishment. Okay,
Also, Mr. Keesing, the professor, started cracking jokes every now and then in front of the class. थर्ड टाइम जब फाइनली एनी ने ये पोएम लिख कर दी तो उस पोएम को पढ़कर बच्चों को सुनाया गया सबको. सबने उसको बहुत लाइट मैनर में लिया, लाइट वे में लिया. एंड ऑथर बिगेन फॉर्चुनेट इनफ एंड टॉक्ड अनइंटरप्टेडली. और अभी भी यानी कि जो हैबिट थी बातें करने की वो ख़त्म नहीं हुई इतना पनिशमेंट के बाद में भी. एंड स्पेशली इन मैथ्स क्लास. एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट विदाउट एनी फर्दर होमवर्क, अब उसे और ज़्यादा कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया गया एज अ होमवर्क एनी को, क्योंकि प्रोफेसर भी ये समझ चुके थे. एंड ऑल्सो मिस्टर कीजिंग द प्रोफेसर स्टार्टेड क्रैकिंग जोक, और वो भी उस बच्चे के साथ बच्चे बनकर और उसकी बातों को मजाक में लेने लगे. ओके. एंड जोक एवरी नाउ एंड देन इन फ्रंट ऑफ द क्लास. सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. कैसे उनका ये जो है पूरा हिस्ट्री, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका स्कूल लाइफ, उनका एजुकेशन, ये सारा एक छोटा सा एक्सेप्ट ओनली. एक्सेप्ट मीन्स पार्ट. हमको पूरा एक नॉवल है बड़ा सा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसका एक छोटा सा एक्सेप्ट उन्होंने they have to share with us. Okay. So that we about the school and about her family members, her sister, her mother and her father. So this is all about Anne Frank. Just go through it and complete the question answers. Thank you.